Assalamu alaikum students of class 7. In previous lecture we have studied about what is a sentence, how many parts of sentence are there, what is subject, what is predicate, what is verb, what is object. Today our topic is phrases and clauses. But before starting phrases and clauses, I am going to give you a quick recap of what we have studied in previous lecture. So, sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words that give us a complete sense. Makes and gives us a complete sense. So, how many parts of sentence are there? There are basically three main parts of a sentence: subject, verb, object. What is subject? जिसके बारे में बात हो रही हो. What is a verb? किसी काम की हालत को बयान करना. सब object, जिस पर काम हो रहा हो. So, two major parts of sentence: subject and a predicate. What is a subject? The thing or a person you are talking about. What is a predicate? Predicate is basically amalgamation of verb and object, the part of a sentence which tells about the subject. So, coming toward phrases and clauses. What is a phrase and a clause? In your grammar book, you have to come on page number 35, topic 11, phrase and clause. What is a phrase? Phrase, a group of words having a particular meaning but without a finite verb, is called a phrase. Okay, so in this flowchart, I have already written a group of words having a particular meaning but without a finite verb. For example, a glass of milk, an apple in the afternoon, दूध का ग्लास, एक सेब बादे दोपहर. इसका क्या मतलब हुआ कि ये बेसिकली होते तो ये कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, ये हमें एक मीनिंग देता है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं हो रहा होता, इसमें कोई वर्ब नहीं होता. इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, बट इट ऑल्सो गिव अस अ पर्टिकुलर मीनिंग अबाउट अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास ऑफ मिल्क. अ ग्लास ऑफ मिल्क से हमें एक आइडिया हो रहा है कि ये ग्लास किसका है, ये एक दूध का ग्लास है. एन एप्पल, एक सेब, एक हमें आइडिया मिल रहा है, वी गेट अ मीनिंग. दिस इज अ फ्रेज. व्हाट इज अ क्लॉज? बिफोर स्टडिंग अबाउट क्लॉज, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट two types of sentences: a simple sentence and a compound sentence. What is a simple sentence? A simple sentence contains only one sentence. इसमें एक आपके पास एक नॉर्मल सा सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एप्पल, my name is Miss Rubab, या this is a bed, this is an pen. इस तरह के sentences, simple sentences. For example, the farmers plucked the fields. एक simple sentence है आपके पास जिसमें एक subject है और एक predicate है. Okay, so a compound sentence में क्या होता है? Compound sentence में basically it has at least two independent sentences. Therefore, a compound sentence has two independent sentences. अच्छा, अब इसमें दो sentences को आपस में मिला दिया जाता है. ठीक है. For example, my name is Amna and I study in class 7. अब क्या हुआ? एंड जो हमने आमना में यूज़ किया वो एंड हमें कनेक्टिंग है, वो कंजंक्शन आ गई है हमारे पास, वो दो सेंटेंस को एंड आपस में कनेक्ट कर रहा है. इसी तरह द स्टूडेंट्स क्लोज देयर बुक्स एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग. अब कंपाउंड सेंटेंस कैसे हुआ? क्योंकि ये दो सेंटेंस है जिनको किसी कंजंक्शन से हमने रोका है, जोड़ा है. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है कनेक्टिंग सेंटेंसेस. कनेक्टिंग सेंटेंसेस के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल देन, दैट, बिकॉज, दे, बट, एंड, और, ये सारे वर्ड्स हमारे पास कंजंक्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज. अब every clause has a subject and predicate. Simple sentence, the tiger is a cat. अब ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस आ गया क्योंकि एक छोटा सेंटेंस है. ठीक है, एक इसमें बात पूरी कर दी गई है. अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में हम इसी सेंटेंस को एक कंजंक्शन के साथ ज्वाइन कर देंगे. द टाइगर इज़ अ कैट बट नो वन वुड कीप इट एज अ पेट. अब क्या है, इसमें बता दिया उसने कि टाइगर एक कैट तो है, लेकिन हम उसको एज अ पेट, पालतू जानवर के तौर पे घर पे नहीं रख सकते. सेंटेंस
फ्रेजेस और क्लॉज की हमारे पास यही डेफिनेशन है कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होता है, और जो क्लॉज होता है उसमें वर्ब का यूज़ हो रहा होता है। अब आप इसको अच्छे से पढ़िएगा अपनी ग्रामर बुक में से, और अगर आपको कुछ नहीं तब भी समझ आता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा प्राइवेट चैट में। थैंक